Hello everyone. Today I am here to give you some information related to that RS configurations, and today we are applying these configurations on the planar geometry compounds. In this lecture we are also going to discuss something about the pseudo asymmetric center, because if you are assigning the RS configuration, sometimes the meso type of compound is also formed. They have the similar kind of functional group. If you are passing a line through them, they equally divided into two halves. Such type of compound is a meso, and due to this meso effects they is showing some pseudo asymmetric center, and we are assigning the RS configuration is also to such center. Okay, so we are starting from our general informations. So guys, the same here, CIP rule is working on board below according to the priority, because without the priority we are not assigning the RS configurations. Okay, so suppose I am giving you this rule. It's the planar geometrical compounds. This one is A and that one is B and that one is C and that one is suppose D. So guys, first of all, those group are upside D, they are known as the, you know very well about it, exo. Exo means above sides or toward the observer. Toward the observer. Okay? And just D and B are downside and they are known as the endo. Endo means away observer. From observer, away from the observer. तो ये observer से क्या है, दूर है. So जो exo होंगे वो towards the observer, जो endo होंगे वो away the observers होंगे. On the behalf of this exo and endo, we are assigning the lots of configurations. That is the first point. By using the such type of this concept, we are going to solve and assigning the lots of configurations. Okay. The first type of compounds I am giving you. The first type of compounds generally is related to that. Okay. This one is compound, this is upside, this is chlorine, that one is H, or here the another one is CH3 and another one the downward is H. Okay. So we are also able to write the such type of compounds in such. Okay. So the Cl is upside, so it means that atom is towards the observer. And the hydrogen is downside, it means away from the observer. The another one is CH3, is also above side, exoside, so it is also towards the observer. And the hydrogen is downside, it means away from the observer. So here two chiral centers are available. Okay, stereogenic centers are here, that is A, and another one is B. So then we are going to assign the RS configurations. I mean, RS configurations are assigned according to priority. That is first one. That carbon attached with one, but that carbon attached with the two carbon atoms. So इसका मतलब that carbon is 2, that one is 3 and hydrogen is 4. So यहाँ पे जो lowest priorities group है वो आपका कहाँ है? Away from the observer. So कैसे rotate करेंगे guys? That is 1, 2 and 3. So A का जो configurations निकल कर आएगा वो आपका क्या आएगा? R configurations. Okay. Then we are talking about another carbon atom, this one. So here the carbon is attached directly with CH3 and that carbon attached with the Cl. तो आप इसको अब यहाँ पे किस को first priorities देंगे? This carbon is directly attached with Cl and that carbon is CH3. So we are giving number 1. इसको number 1 देंगे. That is 2 और third one ये part होगा. Here is also lowest priority group is away from the observer. So यहाँ पे भी rotate करेंगे 1, 2 and 3. So this is also a R configuration. तो इस तरह से आप क्या करेंगे? Configurations को assign करेंगे. This is another example. See, in case of the next example, I am giving you some more examples. In the next examples, this one, another example is there. This is CH3. You know, above side है. तो ये आपका है आपका एक्सो है, यानी कि टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और ये जो हाइड्रोजन लगा है ये आपका क्या होगा? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा. सेम एज यहाँ पे उल्टा आपने करना है. यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा और जो CH3 मिथाइल ग्रुप आएगा ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. दैट इज द साइक्लिक कंपाउंड्स. सो टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर हियर. सपोज हमने इसको A बोला और हम इसको B बोल देते हैं और इसको असाइन करते हैं. नंबर असाइन करा जाएगा यहाँ पे.
तो नंबर असाइन के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द ए कार्बन इस कंपाउंड्स के लिए असाइन करते हैं. हियर दैट वन इज CH3, ओके, और दैट कार्बन दिस इज CH3, another carbon is attached with one carbon and that carbon also attached with the one carbon, but that one is also okay. कितने कार्बन से अटैच है? ये एक कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन दो कार्बन से अटैच है, तो इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3. तो इसके लिए देखिए क्या है, that one is 1, downwards carbon is 3 and the left side one is 2 and least priority group is back side. तो यहाँ पे inversion जो आपका configurations होगा वो involved नहीं होगा. So we are working according to the priority rule, highest priority to lowest, 1, 2 and 3. So its configuration is guys S. तो इसका configurations आपका S निकल कर आता है. Same for that carbons. Here the carbons is attached with 1, that carbon attached with the 2 carbons. So यहाँ को priority 2 और इसको आप करेंगे 3. But look at here, यहाँ पे आपका क्या है generally, that one is 4. इस compounds में जनरली जो प्रायोरिटीज ग्रुप हैं यहाँ पे 3, 2 क्या है प्लेन में और ये क्या है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो अगर मैं आपसे कहूँ इसको जरा इस तरह से मैं करके रखूँ, 3 और 2 आपका कहाँ है प्लेन में और आपका जो हाइड्रोजन्स है वो कहाँ है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है 4 लिख लीजिए और बैक साइड वाले को आप क्या कर देंगे 1. इसको सॉल्व करने के लिए इसको प्रेस करिए. तो प्रेस करने पे क्या होगा, 3 and 2 lies in the horizontal line. प्रेस करने पे ये upside आ जाएगा. That line is to vertical line is the upside line. So that is the first and that one is 4. Okay. ये आपका क्या है इस साइड है. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस को जरा हम अगर असाइन करें तो असाइन करने में क्या होगा आपका, क्योंकि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा चेंज हो जाएगा. इफ यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू 1, 2, 3 इस हिसाब से अगर हम इसको असाइन करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशंस आता है क्या R. ओके, बट जनरली ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ग्रुप्स, ओके, एटम्स, लोएस्ट प्रायोरिटी एटम टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर्स, ये आपका क्या हो जाएगा S. So here is also the configuration is S. यहाँ पे भी आपका configuration क्या होगा S होगा. ठीक हो गया, तो हम इसको इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं. Just giving you the next example. In case of the next examples we are taking here, that one is also cyclic ring, but here we are using some another elements. That one is Br or this one is Cl. So यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रहेगा H और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन इस तरह से. Okay. So here the 2 chiral center, one is here, another one is here. आप चाहे तो इसको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म्स में, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म्स में और चेयर फॉर्म्स में कन्वर्ट करके, और जनरली यू नो द चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल, उसमें भी कर सकते हैं. ओके, एक्सियल इक्वेटोरियल फॉर्म में, बट यहाँ पे भी इसको साइन करा जा सकता है और जनरली इसको चेयर फॉर्म्स में या बोर्ड फॉर्म्स में लेकर साइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, Br is the first priority, the second priority to above one because attached with chlorine, the third priority to that carbon and fourth priority to hydrogen. तो यहाँ पे आपका क्या है, जनरली fourth priority away from the observer because that one is exo and that one is endo. तो आपको क्या करेंगे, आपका 1, 2, 3 इस तरह से आपका है, that is 1, 2 और 3 है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा. So it is that one is S configuration. Okay, अब वाले कार्बन्स को देखें, यहाँ पे आप 1 क्लोरीन को देंगे, सेकंड इस साइड वाले कार्बन को अटैच विद द ब्रोमीन, थर्ड वन और ये फोर्थ वन होगा. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रोटेट करेंगे सिमिलर वे में. गाइस देखिए इसको, फिर क्या है यहाँ पे जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स है, here the lowest priority groups is towards the observer, और ये दोनों कहाँ हैं आपके 2 और 3 प्लेन में हैं, और यहाँ पे आपका 1 और 4 प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. ठीक है, अब जरा इसको हम प्रेस करके देखें कि कैसा आपका असाइन होता है. सो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप आता है प्रेस करने पे ऊपर, फोर्थ ग्रुप नीचे, सेकंड ग्रुप यहाँ पे और थर्ड ग्रुप यहाँ पे. ओके, सो जो रोटेशंस होगा वो कैसे होगा, 1, 2, 3. कॉन्फ़िगरेशंस क्या निकल कर आई,
R, पर जनरली जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर्स हैं, तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होने के कारण ये क्या होगा आपका S कॉन्फ़िगरेशंस को शो करेगा. Okay, so this is the way to find out the configurations or assigning the RS configurations to a planar geometrical compounds. अब इसी के बिहाफ पे I am just giving you some more examples. Okay, उन examples पे हम देखेंगे. This one is also another examples. यहाँ पे भी क्या है आपका ये cyclic ketonics compounds है. यहाँ पे भी आपका क्या है एक compounds आपका साइन करा जाएगा. That one is CH2 और ये क्या हो गया आपका Br. That one is CH2 and Br, and here this compounds contain a Cl. Okay. So यहाँ पे एक कायरल सेंटर्स आपका जनरेट होता है. इस कायरल सेंटर्स को असाइन करना है नंबर. The chlorine is first, the second one is Br. Okay, and तो थर्ड वंस आप इसको करेंगे, थर्ड वन आप इस कार्बन को करेंगे. ओके, और फोर्थ क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे. ऑब्वियसली क्लोरीन को आप फर्स्ट असाइन करेंगे, फिर उसके बाद आप Br, क्योंकि इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन एटम, एक कार्बन के बाद है, फिर नियरेस्ट ये फंक्शनल ग्रुप पड़ता है आफ्टर दैट वन, तो उसको इस तरह से असाइन किया जाएगा. मगर यहाँ पे जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप्स है वो देखिए क्या है, प्लेन में. यानी अगर मैं इसको अगर प्रॉपर्ली ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में है और उसके बाद थर्ड भी प्लेन में है, और जो सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप्स है वो आपका टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है. ओके, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स है, जो मेन ग्रुप्स है वो कहाँ है आपका अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप्स को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से प्रेस करेंगे. तो प्रेस करने पे 4 और 3 है, अप साइड आएगा 1 और बिलो साइड आएगा 2. वैसे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को इंटर कन्वर्ट करके आप वर्टिकल लाइंस मिला सकते हैं, बट वी डोंट नीड टू फॉर द इंटर कन्वर्जन्स. अगर वो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल्स में है तो उसका कॉन्फ़िगरेशंस आप क्या कर दीजिए, इन्वर्ट कर दीजिए. ओके, वैसे आप कर सकते हैं इसको भी. सो अगर आप फिर भी इन्वर्ट करना चाहें तो देख लीजिए इन्वर्ट करने में क्या होगा, डबल इंटर कन्वर्जन्स होगा. 4 आएगा ऊपर, 1 आएगा इधर, दैट वन इज 4, इट इज 1, 2 आएगा इधर और 3 आ जाएगा नीचे. तो आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ गया वर्टिकल लाइंस में. तो आप रोटेट करिए 1 then 2 then 3. so its configuration is R. तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशंस निकल कर आया वो जनरली क्या कॉन्फ़िगरेशंस निकल कर आता है आपका R कॉन्फ़िगरेशंस निकल कर आता है. ठीक है, तो अब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होगा इसका R ही होगा. ओके, so that is the R configurations of the given compounds. See, after that one we are working on one important points. वो important points क्या है, I have one compounds and here we are going to assign the R and S configurations. वो compounds है आपका this compound. We are just going to assign a different kinds of functional group, that is OH. ये मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर्स था कॉन्फ़िगरेशंस था उसमें इसके बारे में आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था. That one is hydrogens is towards the observer, that one hydrogen is away from the observer, and this one is COOH. अब इसको COOH भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, we don't need to write in such a way. It's COOH. This one is a compounds. Okay, अब यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस फाइंड आउट करने के कहेंगे सो इट्स अ प्लेन यहाँ से पास होगा, एक मीसो टाइप्स का कंपाउंड्स है. सपोज अगर आप इसे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दोनों जगह पे, ठीक. सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आप इसे देंगे, सेकंड नंबर आप इसे देंगे, थर्ड नंबर आप इसे देंगे. तो यहाँ पे जो मेन प्रायर ग्रुप है ऑब्वियसली हाइड्रोजन पीछे होगा, सो इट विल बी रोटेटिंग 1 2 एंड 3. तो ये आपका क्या निकल आएगा S. तो जनरली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस होने की क्या चांसेस हैं, S. यहाँ का फाइंड आउट करेंगे 1 and 2 and 3, तो यहाँ पे 1 2 3 क्या निकल कर आएगा R. So guys look it here, what about the configurations of mid carbon atoms? तो इस तरह के कार्बन एटम्स के लिए मैंने आपको बोला था दिस इज नोन एज दी pseudo asymmetric center. This is the pseudo asymmetric centers. Okay, pseudo asymmetric centers यहाँ पे आपका जनरेट हो गया है, और R और S के कंपैरिजंस करें तो R इज अ डोमिनेट. तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशंस होगा इसको क्या असाइन करेंगे, स्मॉल r.
Okay, so that one is a small r type of configurations. So how does the pseudo asymmetric center in this compounds always remain as well as same or not? But it's depend upon the functional groups. जैसे अभी मैं इस कंपाउंड्स को एक H हटाकर इस पे क्या लगा दूं, OH जोड़ देता हूं. Okay, it is a very important diacidic compounds. So I am showing you. Suppose here we are using COOH, that is another COOH. This one is OH and that one is also OH. तो guys यहाँ जो frontier hydrogens है इसकी जगह आप क्या यूज करना, OH यूज कर देना और बैक साइड हाइड्रोजन से देना. अभी भी आपका ये क्या है, एक मीसो कंपाउंड है, एक स्यूडो सिमेट्रिक सेंटर की है. इसका नाम जो है वो है ज़ाइलरिक एसिड. इस ज़ाइलरिक एसिड्स में the same configurations assigning here, that one is 1, then here we are giving to the configurations to which carbons, here the carbons is here attached with oxygen, here carbon is also, but here is 2 oxygen, so we are giving 2, that one is 3, so 1 2 3 S, here is also 1 2 and 3, that is R, capital R and capital S. But here is also which one is playing a dominant role, R और S. Okay, R और S में से यहाँ कौन सा डोमिनेंट रोल प्ले करता है उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. तो उसके हिसाब से जब OH ग्रुप्स है तो उसकी असाइनिंग प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है. सो जनरली व्हाट वी आर सेइंग अगर यहाँ पे R है तो ये कौन सा डोमिनेंट कौन सा रोल प्ले करेगा, दैट वन इज R. ओके, द सेम एज वेल एज इफ we are changing the orientation of this hydroxide. अगर इस OH का orientation अगर मैं चेंज कर दूं, ओके, हाइड्रोजन को ले आइए फ्रंट और OH को ले आइए बैक साइड, तब आपका जो कंपोनेंट्स बनकर आएगा दैट इज दी COOH, जो कंपाउंड्स आपका बनेगा दैट वन इज OH, दैट वन इज OH. अगर ओरिएंटेशन इस तरह से हो जाए, OH बैक साइड चले जाए और जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ आ जाए, आपका आगे आ जाए, इसको हम कहते हैं राइबेरिक एसिड. तो इस केस में भी कॉन्फ़िगरेशंस तो S और R ही रहा, बट ड्यू टू द चेंजिंग इन द ओरिएंटेशंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑन द pseudo asymmetric carbon atoms, its pseudo asymmetric centers or here the configuration is also changing. OH की पोजीशन चेंज होने से कॉन्फ़िगरेशंस भी क्या होने लगता है, चेंज हो जाता है. तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि R डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है तो हमेशा R ही हो. ये डिपेंड करता है कंपाउंड्स के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसके ओरिएंटेशंस में. बिफोर द रिएक्शंस इन द ओरिएंटेशंस, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशंस pseudo asymmetric सेंटर पे असाइन हुआ वो क्या है, R. और अगर मैंने उसी OH की पोजीशंस को अगर चेंज कर दूं, एक लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को आगे और हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को पीछे डाल दूं, तो उसका pseudo asymmetric सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू दी RS नोमेनक्लेचर वो क्या हो जाएगा, S. तो राइबेरिक एसिड्स में इस pseudo asymmetric सेंटर्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S है और ज़ाइलरिक एसिड्स में इसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्मॉल r. दिस वन इज द एग्जांपल्स ऑफ द व्हाट, pseudo asymmetric centers. But pseudo asymmetric centers are not to be a reflection invariant. ये reflection invariant है. What is the meaning of the reflection invariant? अगर इसी की mirror image बनाऊं और mirror image बनाकर इस point पे दोबारा assign करूं तो इसका जो pseudo asymmetric center का जो configuration है वो change नहीं होता. तो किसी भी compound की जो mirror image formations होगी उस केस में वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन इनवेरिएंट होगा. यानी कि शायद R और S इन दो कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएं, बट जो pseudo asymmetric सेंटर्स का जो R और S कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं करता इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन इनवेरिएंट. ओके, आई एम गिविंग यू सम अनदर एग्जांपल्स आल्सो लाइक सेम. Our next example is we are showing. Going to show just showing you that pseudo asymmetric center
in this cyclic compounds. Okay, here we are using OH and here is COOH. ओके, एक हमने टॉप में यूज किया है और उसी तरह से क्या करेंगे हम नीचे भी इसका यूज करेंगे एंड हियर वी आर यूजिंग H और हियर इज OH सेम एज वेल एज हम यहाँ पे भी इसको ऐड करेंगे दैट वन इज H एंड दिस वन इज OH और यहाँ पे क्या होगा आपका OH आगे कर देते हैं और H कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे इतने सारे कायरल सेंटर्स हैं, इनको जरा असाइन करें। सो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर की कुछ प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। यहाँ पे ये कार्बन एक कायरल कार्बन में कंसीडर्ड नहीं हो सकता, हाँ हो भी सकता है यहाँ पे, क्योंकि फिर हाइड्रोजन्स को देखकर हम करेंगे तो इसे स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर्स कहते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे क्या है। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द OH इज फर्स्ट वन, ठीक। फिर उसके बाद दिस कार्बन एटम कंटेन O, आफ्टर दैट कार्बन कंटेन कार्बन, सो हम इसको सेकंड नंबर देंगे, थर्ड नंबर यहाँ मिलेगा, फोर्थ नंबर आप हाइड्रोजन्स को देंगे। फिर आप कैसे रोटेट करेंगे 1 2 3। इसका होना क्या चाहिए था आपका R, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो इसका क्या हो जाएगा S। कौन सा? कैपिटल S। अब इसी तरह से O का देखिए, दिस इज 1, फिर नेक्स्ट कार्बन पे O जुड़ा है तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या होगा 3। तो इस हिसाब से इसको होना चाहिए था 1 2 3। किस तरह से है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होने से क्या है आपका S होना चाहिए था, और हाइड्रोजन जो है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है इस प्रायोरिटी ग्रुप, तो ये क्या होगा कैपिटल R होगा इस सेंटर पे। तो यहाँ से अगर एक मिड लाइन पास करूँ तो ये अपने आप में क्या है एक स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर्स में है। तो R और S में डोमिनेंट रोल कौन प्ले करता है? स्मॉल r, ओके। बट सी हियर गाइस, हियर सम फंक्शनल ग्रुप चेंज देयर ओन पोजीशंस। तो इस केस में क्या है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शंस इनवेरिएंट, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन इनवेरिएंट है उसके अकॉर्डिंग जो अभी हमने पढ़ा, तो इसके फ्रंट वाला जो स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर्स होगा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन असाइन क्या होगा S होगा, ओके। सो ये है एग्जांपल्स आपका दूसरा एग्जांपल स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर्स का। बाय द चेंजिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मेन फंक्शनल ग्रुप स्पेशली, सो दे मोर पावरफुल फंक्शनल ग्रुप दे आर चेंजिंग देयर स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर्स। ये दोनों ही क्या हैं स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर के सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं। These are very good examples of the pseudo asymmetric centers. So on the behalf of this we are going to identify the pseudo asymmetric center in given compounds. See next I am giving you another example also. See in case of the another example, I am also giving you examples, cyclic example. So here is hydrogen and that one is COOH. A similar kind of example is here. Here we are again using COOH and this one is, but here we are using a different chlorine, okay. This one is chlorine and that one is, तो यहाँ पे भी अभी हम क्या करेंगे स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर्स को क्या करेंगे असाइन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे उसका कॉन्फ़िगरेशंस कि क्या उसका कॉन्फ़िगरेशंस है। तो सी गाइस यहाँ पे से आपका ये लाइंस पास होगी तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है इसकी। सो हियर द कार्बन्स इज COOH, सो यहाँ पे द कार्बन्स इज अटैच्ड विद CO, तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सेकंड में आपका ये आएगा क्योंकि ये क्लोरीन से अटैच है, थर्ड्स में ऊपर और हाइड्रोजन्स को मिलेगा 4। एक्चुअली ये रोटेट होना चाहिए था किस तरह से 1 2 and 3, ओके। इसको होना चाहिए था आपका R, बट ये लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो ये क्या होगा आपका S होगा। अगर मैं इसमें नंबरिंग करना स्टार्ट करूं सो आप क्या कर सकते हैं इसमें नंबरिंग भी असाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1 2 3 कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसा है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स को असाइन करिए, दैट वन इज 1 सेम एस। इसके बाद वाला कार्बन है, बाद वाला कार्बन है, फिर कार्बन है मगर यहाँ पे ये कार्बन है और वो क्लोरीन से जुड़ा है तो आप इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे और 4 बोलेंगे।
तो ये भी आपका क्या आया 1 2 3, तो होना चाहिए था S, बट लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप फ्रंट में है तो क्या होगा आपका R, S R है। अब इस कार्बन का आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसके इधर पे सेम फंक्शन ग्रुप्स अटैच है, सो इट इज अ काइंड ऑफ द स्यूडो असिमेट्रिक सेंटर। तो इसका जो स्यूडो असिमेट्रिक सेंटर्स के बिहाफ पे अगर हम असाइन करें तो R इज प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल, सो दिस वन इज R। तो ये क्या है आपका एक R स्यूडो असिमेट्रिक सेंटर्स में इंक्लूड किया जाता है। सो दिस वन इज द एग्जांपल्स ऑफ द स्यूडो असिमेट्रिक सेंटर। सो गाइस आज हमने प्लेनर कंपाउंड्स में देखा कि कैसे हैं, ठीक है। एक और प्लेनर कंपाउंड सिंपल सा मैं आपको फिर उसमें हम फाइंड आउट करके इसको वाइंड अप करते हैं। Now another one example is this one, Br H, Br and H. This one is the chiral compounds. Chiral compounds है, ठीक है। मिरर इमेज नहीं है, प्लेन पास नहीं हो सकता, यू नो वेरी वेल। इसको जरा इस तरह से प्रेजेंट करके देखते हैं। ये आपकी तरफ है, Br is upsides, so it is towards the observer, and the below side is hydrogen. Okay, and the another one is the same thing is opposite. The Br is away from the observer, and the hydrogen is towards the observer. अब असाइन करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस। So ये Br है, this carbon and this carbon attached with bromine, so this one is 2, that carbon is 3 and that hydrogen is 4. So it is away from the observer, lowest priority group. So देखिए क्या हुआ 1 2 3, so इसको क्या मिला आपका R configurations मिला। Similarly plane geometry की बात करी जा रही है तो Br is 1, next 2 and that carbon is 3, but here the least priority group is toward the observer, तो इसका क्या होगा अगर रोटेट करें 1 2 3, तो ये S है बट ये होगा क्या आपका R। So क्या configurations निकल कर आया R and R। So in the same way you are going to find out the configurations, and the last one, the another cyclic compounds I am giving you here. This is the cyclic compounds. Here the functions group are attached. This one is here. The same kind of the function groups I am giving you. That one is NO2 and that one is H. Okay. And generally, what happens here? We are also giving you some another function groups. Those who are attached outside from the rings. This one is O. The O is attached with the carbon atoms. Okay. That carbon atom and that carbon atoms is attached with here H, CH3 and CH2, CH3. Here I am showing you that hydrogen is far away from the carbon. Okay. So we are going to find out the configurations of the given compounds. Here is the 1 2 a symmetric center, and there is also. So see guys, first of all starting from this carbon atom, here the chlorine is first. This carbon, that carbon attached with nitrogen and that carbon attached with oxygens. So एक ऑक्सीजन से अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे ऑक्सीजन वाले को, तो दैट वन इज 2। ओके 1 2 3 and 1 2 3। इसके बाद आप क्या करेंगे थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी देंगे हाइड्रोजन को। सो देन वी आर वर्किंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। अगर रोटेट करें 1 2 3 तो इसको आना चाहिए था S, बट जनरली ये क्या इसमें कन्वर्ट होगा R में, बिकॉज हियर द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर वे आप इसको नंबर प्रोवाइड कराएंगे, द फर्स्ट सेकंड में 2 3 यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो आप क्लोरीन वाले को प्रायोरिटी देंगे। ओके इसको मैं दूसरी चौक से रिप्रेजेंट करता हूँ, कलर चौक से, दैट इज 1 is 2 and this one is 3 and this 4. But see here the lowest priority groups is away from the observer. So अगर ये away from the observer है तो यहाँ पे configuration change होगा। So that one is 1 is 2 and 3। तो क्या निकल कर आया है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका S आएगा। अब इस कार्बन को असाइन करिए जरा, यहाँ पे ऑक्सीजन को फर्स्ट मिलेगा, फिर इथाइल को सेकंड मिलेगा और मिथाइल को थर्ड मिलेगा। और वैसे भी हाइड्रोजन डैश लाइन में है, डॉटेड्स में है, मींस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर।
so हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट इज द 1 2 and 3. तो here is also a S configuration. so यहाँ पे भी क्या असाइन हुआ आपका S configurations, इसको असाइन होता है, ठीक है. तो इस तरह से हम किसी प्लेनर कंपाउंड्स का ज्योमेट्री उसके इनसाइड और आउटसाइड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपने आज पढ़ी, the pseudo asymmetric center, how the pseudo asymmetric center is not affected by a reflection invariance, okay, but when the positions of the main functional group is changing at the same carbon atoms after the reactions, so its pseudo asymmetric center configuration is also changing. Just focus all these things. I am giving you some more problem related to that one, and we are going to discuss related to that one is also, but that's all for the day. Thank you.